بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، آج کی یہ باتیں ہمارے دلوں کو روشنی عطا کریں، ہماری روحوں کو بیدار کریں، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں اور ہمیں اپنی خاص محبت والوں میں شامل کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، آپ کو حوصلہ ملے گا، موٹیویشن ملے گی، سکون ملے گا، امید ملے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک محبت بھری درخواست ہے، جب بھی کوئی اسلامی ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ایک لائک کسی اور کے دل میں ہدایت کی شمع جلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے تہجد کے تجربات، اپنی قبول ہونے والی دعاؤں کی کہانیاں ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے ایک کامنٹ سے کسی کا دل ہمت پکڑ سکتا ہے، کوئی ٹوٹا ہوا شخص اللہ کی طرف لوٹ سکتا ہے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہر اسلامی ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ نیکی کا سفر آگے بڑھتا رہے۔ اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیے، کیونکہ یہاں آپ کو اور بھی خوبصورت ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر پل، ہر لمحہ اسے سننے کو تیار رہتا ہے۔ درود و سلام اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس نے ہمیں سکھایا کہ رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کو پکارا کرو۔ آج میں آپ سے ایک ایسی محبت کی داستان بیان کرنے جا رہی ہوں جو رب اور بندے کے بیچ کی سب سے پاکیزہ، سب سے سچی، سب سے بے لوث دوستی کی داستان ہے۔ ایسی دوستی جس کی کوئی مثال نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، میں تمہارا بہترین دوست ہوں، اور پھر اس بات کو صرف دعوے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ لمحہ لمحہ، پل پل اپنے کرم، اپنی رحمت، اپنی عطاؤں سے ثابت کرتا ہے کہ ہاں، وہی سب سے بڑا، سب سے سچا دوست ہے، سب سے بہترین دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز ہمیں عطا کی۔ یہ 5 وقت وہ مواقع ہیں جب وہ رب کہتا ہے، آؤ مجھ سے بات کرو، مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ یہ دن میں 5 بار کی محبت کی ملاقاتیں ہیں۔ رب اپنے بندے کو بلاتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کے دل کا حال سنتا ہے، اور عطا کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ لیکن رب کی محبت صرف یہاں تک محدود نہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی دوستی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ کے اور قریب ہونا چاہتا ہے، تو رب بھی اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے۔ وہ بندے کو رات کی تنہائیوں میں بلاتا ہے، نیند کی قربانی مانگتا ہے، اور ایک ایسی ملاقات کا دروازہ کھولتا ہے جو کائنات کی سب سے حسین ملاقات ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے
जिसे वक्त तहज्जुद कहते हैं, नमाज शब का वक्त और रात का तीसरा पहर, जब हर आँख नींद में डूबी होती है, जब हर ज़बान खामोश होती है, जब हर दरवाज़ा बंद होता है लेकिन एक दरवाज़ा खुला होता है, आसमान दुनिया पर अल्लाह का दरवाज़ा। अल्लाह नुज़ूल फरमाता है, अपने बंदों को आवाज़ देता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं। ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, अल्लाह हमारा रब, हमारा सबसे बड़ा दोस्त खुद बंदे को बुलाता है, खुद पुकारता है, खुद मांगने का कहता है। ये कैसी दोस्ती है, कैसी मोहब्बत है, कैसा करम है, कैसी रहमत है। दुनिया में कोई बादशाह किसी फ़कीर के दरवाजे पर आकर नहीं कहता कि मांग ले जो मांगना है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कायनात का मालिक, बंदे के करीब आता है और कहता है, आओ मांगो, बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के। तहज्जुद अल्लाह की दोस्ती की इंतहा है। ये रब का ख़ास बुलावा है, ख़ास दावत है, ख़ास इन्विटेशन है। 5 वक्त की नमाज़ें तो तमाम बंदों के लिए हैं, लेकिन तहज्जुद अल्लाह के ख़ास बंदों के लिए है। उनके लिए जो अल्लाह को सिर्फ़ फ़र्ज़ी इबादत की हद तक नहीं चाहते, बल्कि अल्लाह को दोस्त, महरम राज, महबूब और सब कुछ समझते हैं। जब बंदा अपनी मीठी नींद छोड़कर, अपने नरम बिस्तर को छोड़कर रात के सन्नाटे में उठता है, वज़ू करता है, अपने जिस्म को वज़ू के पानी से पाक करता है और अपने रब के सामने सजदे में गिर पड़ता है, तो वो लम्हा दुनिया की सारी नेमतों से कीमती हो जाता है। मोहब्बत का एक मंज़र देखिए, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपने आराम को कुर्बान कर दे, उसकी मोहब्बत में रातों को जागे, उसकी खुशी के लिए खुद को थकाए, तो दुनिया में हम उसे वफ़ादारी, सच्चा इश्क कहते हैं। और जब बंदा अपने रब की मोहब्बत में रात को उठता है, नींद को कुर्बान करता है, अपनी ख्वाहिशात को मार कर अल्लाह के हुजूर पेश होता है, तो अल्लाह ताला उसे देखकर खुश होता है। ऐसा खुश होता है कि एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फ़ख्र के साथ फरमाता है, देखो मेरे बंदे को, इसने मेरी मोहब्बत में अपना आराम छोड़ दिया। और फिर क्या अता होती है, दुनिया भी, आखिरत भी, दुआ भी कबूल, बख्शिश भी, अता भी, मुश्किलात का हल भी, दिल का सुकून भी, बंद दरवाजे भी खुलते हैं, मौजज़े भी होते हैं, मायूसी की जगह उम्मीद आती है, टूटे दिल जुड़ते हैं, अंधेरे छटते हैं और दिल में नूर उतरता है। मोहब्बत का ये सफ़र जब बंदा तहज्जुद में शुरू करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह उसे अपनी ख़ास दोस्ती में ले लेता है। वो रब का चहीता बन जाता है। अल्लाह उसके मांगने से पहले अता करता है, उसके मांगने से पहले उसकी सुन लेता है। सोचिए, ऐसा मुकाम, ऐसी कुर्बत अल्लाह खुद बंदे को अता करने के लिए वक्त तहज्जुद
आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाए और ये कहे कि मांगो मुझसे मैं अता करूं। ये तहज्जुद की बरकत है। अगर दिल में तमन्नाएं हैं, अगर कोई दुआ है जो मुद्दतों से कबूल नहीं हो पा रही, अगर दिल टूटा हुआ है, सुकून चाहता है, अगर मायूसियों ने घेर रखा है, तो आज ही तहज्जुद को अपना हथियार बना लीजिए। तहज्जुद एक ऐसा तीर है जो कभी भी अपने टारगेट को मिस नहीं करता, जिसका निशाना कभी खता नहीं होता। अल्लाह के हुजूर रात के सन्नाटे में आँखों से बहते आंसुओं के साथ सजदा कीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी तकदीर बदलती है, कैसे आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाता है, कैसे वो आपके उठे हाथों की लाज रखता है। याद रखिए, जब सब सो रहे हों और आप जाकर अल्लाह को पुकारें तो अल्लाह भी आपको वैसा ही ख़ास जवाब देता है, ऐसा जवाब जो दिन की दुआओं में कभी ना मिलता। तहज्जुद सिर्फ़ एक इबादत नहीं, ये इश्क की इंतहा है। ये अल्लाह से दोस्ती का आला तरीन दर्जा है। ये अल्लाह की फ्रेंडशिप लिस्ट में टॉप पर आ जाना है, अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाना है। गम की बूंदें जो वक्त तहज्जुद गुजार की आँखों से टपकती हैं, अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। वक्त तहज्जुद दुआएं मांगने का बेहतरीन वक्त, इस्तग़फ़ार करने का, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का बेहतरीन वक्त है। हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट हमारे गुनाह बनते हैं, और जब हम अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ खुलूस नीयत से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, तो रात के तीसरे पहर बड़ा ही करीम है हमारा पाक परवरदिगार, वो फिर हमारे गुनाहों को ज़रूर बख्श देता है और फिर हमारी दुआओं को अपनी शान करीमी से कबूल फरमाता है। दिन के उजालों में जो बातें अपने पाक परवरदिगार के साथ नहीं कर सकते हो, रात के अंधेरों में करो। जो बातें दिल में नहीं रख पा रहे हो, वो लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है, जो आपका राज़दार है, जो आपकी सुनता भी है, राज भी रखता है, और जिसके पास आपके तमाम मसाइल का हल है, जो दुआओं को कबूल फरमाता है, सिर्फ उसके साथ शेयर करें, उसे बताएं। वो आपके गमों का मदावा करेगा, आपकी तकलीफ़ों को दूर करेगा, आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। बस फ़कीर बनकर वक्त तहज्जुद अपने पाक परवरदिगार की बारगाह में, तमाम जहानों के बादशाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं और मांगें, फिर उसकी अताएं देखें, ऐसी अताएं कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर कुन फाजा कौन के जलवे देखने हैं तो वक्त तहज्जुद मांग कर देखो। मैं कहती हूँ, इंसान के साथ सबसे बड़ा मौजज़ा तो जब होता है जब वो वक्त तहज्जुद ख़ास कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है, महबूब बना लिया जाता है। यानी जब तहज्जुद की तौफीक उसके हिस्से में आ जाती है। ये कोई आम या मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा करम है पाक परवरदिगार का।
बहुत बड़ा मौजज़ा है। जब इतनी बड़ी कायनात नींद की आगोश में हो और किस्मत वाले जाग रहे हो, जाग भी बहुत सारे लोग रहे होते हैं। किस्मत वाला तो वो है जो वक्त तहज्जुद, सजदाए तहज्जुद को पाले, अपने पाक परवरदिगार को पाले। जब बंदा अपने रब को पा लेता है तो सब कुछ पा लेता है। यकीन पा लेता है, भरोसा पा लेता है, तवक्कुल पा लेता है, सब्र, शुक्र और बहुत कुछ पा लेता है। इंसान मारा मारा फिरता है सुकून की तलाश में, और सुकून तो अल्लाह की याद में है, अल्लाह के ज़िक्र में है। और सुकून पाने का बेहतरीन वक्त तहज्जुद है। अगर कभी तहज्जुद के वक्त तुम्हारी आँख खुले और तुम तहज्जुद ना भी पढ़ो तो अल्लाह से मांगना ज़रूर, जितना उसका ज़िक्र कर सको लेटे लेटे वो करना, जितना उसे पुकार सको पुकारना, जितनी उसकी हम्द व सना कर सको ज़रूर करना। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। ये तकदीरें बदलने का वक्त होता है। तकदीर के फैसले आसमानों पर रात की तन्हाइयों में बदलते हैं। जब बंदा रब को सजदे में पुकारता है तो आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते दुआओं को लेकर उठते हैं और रहमतों की बारिश बरसती है। आज का पैगाम बस इतना है, अपने रब से दोस्ती कीजिए, रात के सन्नाटे में, मोहब्बत के सजदों में और तहज्जुद के आंसुओं में अपनी तकदीर संवारिए। अल्लाह आप सबको अपनी ख़ास मोहब्बत, ख़ास कुर्ब और ख़ास दोस्तों में शामिल करें। ऐ मेरे रब, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ऐ दिलों के सुकून के मालिक, ऐ रात की तन्हाइयों के राजदार, ऐ रहमतों के समंदर, आज ये तेरे बंदे तेरी बंदी तुझसे मांगने के लिए हाथ फैलाए बैठे हैं। या अल्लाह, इनके दिल की सारी उदासियाँ खुशियों में बदल दे, इनकी सारी उम्मीदें सब्ज कर दे, इनके दिलों की टूट फूट को अपने करम से जोड़ दे, इनके अंदर का खौफ, मायूसी, बेचैनी मिटा दे, इनकी दुआओं को वो कबूलियत अदा कर दे जो आँखों से मौजज़ा बनकर टपके। या अल्लाह, जो रातों को उठकर तुझे याद करें, उनके लिए ज़मीन व आसमान की वुस्अतों से रिज़्क़ खोल दे। जो तुझे आँखों के आंसुओं के साथ पुकारें, उनकी हर दुआ को अपने करम से हाँ कर दे, कबूल कर ले। उनके हाथ खाली ना लौटाना, उनके दिलों को ऐसा सुकून दे दे जो दुनिया की कोई चीज़ छीन ना सके। उन पर अपनी ख़ास मोहब्बत, अपनी ख़ास रहमत बरसा दे। या रब, जिनकी आँखें आज अश्कबार हैं, उन आँखों को जल्दी खुशियों से जगमगा दे। जिनके दिलों में दुआ है, उसे अपनी शान के मुताबिक कबूल कर ले और हमें उन बंदों में शामिल कर ले जिनसे तू मोहब्बत करता है, जिनको तू ख़ास दोस्त रखता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।